कॉन्फ्रेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा इस रूम से बाहर निकल जाए प्लीज। सर मेरे को मालूम है आप सारे लोग मीडिया के नहीं है, जो नहीं है वो मीडिया कमेटी के भी नहीं है, बाहर निकल जाए प्लीज। थैंक यू। Before we start this press conference, I would request all of you to check your phones once. It should be on silent on discreet mode, please. Indian team will be traveling to Vizag tomorrow. There will be no media activity. So this is your only chance for the Vizag game. Please raise your hands, identify yourself and one question at a time. We'll start from here. देखिए, जहाँ तक मैचेस की बात है तो आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है। काफ़ी बार आप स्टैट्स जब तक ऐसा होता है तो आप वेन्यू से एसोसिएट करने लगते हैं कि इस वेन्यू में ज़्यादातर ऐसा होता है, बट अल्टीमेटली आपको अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ता है। एंड इट्स एक यंग वेन्यू है। अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैचेस नहीं हुए हैं, बट जो भी मैचेस हुए हैं उसमें इंडिया ने काफ़ी अच्छा किया है, तो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। एंड हमेशा वापस आके घर में खेलने का एक अलग मज़ा होता है, और उससे ये भी होता है कि घर वालों के साथ एक्स्ट्रा 2 दिन बिताने को मिल जाता है। It was an opportunity for him to, see international cricket closely, and this is what he's known for. He can play the big shots. He can go in and straight away play the big shots. So, in the coming games, whenever we get some kind of an opportunity, we will like to give every player some kind of a batting, so that going into the T20 World Cup, everyone has got some kind of exposure when it comes to batting. Bowling, everybody will get a chance to bowl, and a lot of times you can always experiment with the bowling. But what happens with batting is, you want to win games, and at the same time you want to give individual fair amount of time in the middle. So it doesn't always go as planned. So definitely in the coming games, if there's a chance of exposing somebody to this kind of an opportunity, we would love to do that, so that by the start of the T20 World Cup, everybody looks good and they've got fair amount of exposure, how or what they need to do, what their roles and responsibilities. May I please? पिछले मैच में आपने पिच पे कुछ, इस मैच में काफी रन बनाए, इस पर आपका क्या राय है? नहीं, अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा विकेट था, और 200 रन हमने बनाए। अफकोर्स उनका विकेट काफ़ी गिर गया, रनों का दबाव भी होता है, तो इट बिकम्स अ बिट ट्रिकी। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो यहाँ पे जितने भी मैचेस हुए हैं काफ़ी अच्छे हुए हैं, सो डेफिनेटली इट वाज अ गुड विकेट। Question for me, please. Always whenever we come for a press conference, this is one topic that always gets raised, about our death bowling, bowlers who can bowl Yorkers. The good thing with Bumrah is he definitely has a bit of pace. He doesn't have a normal action, so batsman also takes time to get used to him, and at the same time his execution of Yorkers is very good. So definitely that's a big positive. He's one of the guys so far in whatever games he has played, he's bowled very consistently, especially when he's asked to bowl in the last 3 or 4 overs at the death. He's somebody who has executed it really well. So definitely a big positive for us. Last few questions. Question for me, please. मतलब मेरे बारे में भी सोच लीजिए, हम भी ऊपर नीचे होते हैं, बट हमारे बारे में कोई नहीं सोचता। येस, यू आर राइट। अगर आप देखें तो यूवी हमारे लिए नंबर 5 पे, जब एक मैच स्टार्ट होता है अगर सेम लाइनअप हो तो वो हमारे लिए नंबर 5 पे बैटिंग करेंगे। उसके ऊपर प्रमोट करना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि टॉप 4 में अगर आप देखें तो जो 2 ओपनर्स है, यूवी कांट बैट देयर। नंबर 3 पे विराट कोहली बैटिंग करते हैं, नंबर 4 पे सुरेश रैना। अगर आप इन चारों का देखें T20 का रिकॉर्ड इंडिया में या इंडिया के बाहर भी, तो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिकॉर्ड है। सो इट बिकम्स स्लाइटली डिफिकल्ट। यस, युवराज सिंह वापस टीम में आए हैं, हम चाहेंगे कि उनको और बैटिंग हम दे सकें, बट एट द सेम टाइम क्या होता है कि सिंस आई प्लेड विथ यूवी अ लॉट, सीधा 17वें या 18वें ओवर में जाके मारना भी उसके लिए मुश्किल होगा, बिकॉज इज लाइक अ प्रॉपर बैट्समैन हु कैन हिट। ओके, ही कैन स्टार्ट अर्ली, बट जाते साथ स्लॉग में बैटिंग करना, ही हैज ऑलवेज फाउंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट। तो
विल सी हाउ इट गोज, बट डेफिनेटली जैसा कि मैंने बोला, मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले मैचेस में उसको भी एक एक्सपोजर मिले, उसको भी बैटिंग का मौका मिले. बट अगेन वी वांट टू विन गेम्स, दैट आल्सो विल बी आवर प्रायोरिटी, बट विल सी हाउ इट गोज. क्वेश्चन फ्रॉम देयर प्लीज. भाई हम लोगों को अब ये आपका हेलीकॉप्टर शॉट देखने को नहीं मिल रहा है, क्या ये रिफ्लेक्शन की कमी है या आप रिस्क नहीं लेना चाहते? नहीं, होता क्या है ना कि हेलीकॉप्टर जब उड़ता है तो एक पर्टिकुलर जगह में हेलीकॉप्टर उड़ता है. अगर आप समुद्र में चले जाएंगे और सबमरीन के अंदर बोलेंगे यहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उड़ रहा है तो फिर मुश्किल हो जाएगी. यू हैव टू सी व्हाट आर द प्लान्स. हेलीकॉप्टर शॉट एक ऐसा शॉट है जो एक पर्टिकुलर डिलीवरी पे खेला जाता है. अगर वो डिलीवरी नहीं डाली जाएगी तो मैं बाउंसर पे हेलीकॉप्टर शॉट नहीं मार सकता हूँ. मे भी स्टूल लेके जाऊँ, स्टूल के ऊपर खड़ा हो जाऊँ, वो बाउंसर मारे तो हेलीकॉप्टर मार सकता हूँ. बट एज ऑफ नाउ जिस तरीके का ऑपोजिशन का जो भी उनका स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी में हेलीकॉप्टर शॉट मारना मुश्किल है. हाँ, मैं ये कर सकता हूँ वो आउटसाइड ऑफ यॉर्कर मारे, मैं लेग स्टंप के बाहर अपना हेलीकॉप्टर शॉट प्रैक्टिस करता रहूँ तो उसमें रन्स नहीं आएंगे. लास्ट क्वेश्चन. सर नहीं, आपकी नहीं है. आप नहीं सर 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 ये धोनी, ये आपका होम ग्राउंड है, क्या इस नीली जर्सी में दोबारा आपको खेलते हुए हम यहाँ देखेंगे आपके होम ग्राउंड में? क्यों? मैं ये बताओ, मैं अनफिट हूँ? नहीं हूँ ना, अभी भी तेज भागता हूँ, सब कुछ ठीक हूँ. मेरे लिए आप स्पेशल क्राइटेरिया निकालते हो. यार छक्के नहीं मार रहा है, इसको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए. और किसी पे ऐसा कुछ रिटायरमेंट का नहीं आता है, यार ये छक्का नहीं मार रहा है, अब लास्ट 2-4 गेम में छक्के भी मार दे, यार नहीं पता यार, इसको रिटायरमेंट करवा ही देते हैं. पकड़ वगड़ के करा ही दो, खत्म ही कराओ. लास्ट क्वेश्चन सिद्धार्थ नोवा. I think what's important is, he's playing proper shots. At the same time, he's not trying to overhit. The good thing with him is, he's able to get boundary in the first couple of balls in the over. So then he doesn't need to take a lot of risk. And I feel, especially in today's inning, this is something that he has done brilliantly. If there's an opportunity to hit one more boundary, he's playing to his strength. At times in the shorter format, when you get boundaries, you often try to always be in the 5th gear. But what's important is to see as to how many runs are good enough. If you have already got 10 runs in an over, 12 runs in an over, and if the ball is not there, you don't really need to manufacture a shot. Everybody has a few shots that are there, good shots that they can always play. If it's there for cut or flick, it's somebody who plays it well. But it doesn't need to manufacture shots. So I feel this is what he did really well in today's game. He was playing proper shots, and at the same time, whenever he got boundaries, if the ball was not there, he was not hitting it. But if it was there, even if it's the 5th or 6th ball of the over, he was playing his shot, whichever